Okay, good morning everyone. So now we'll do second exercise of that 15 lesson area 15.2, and it's all about the rhombus. It's all about rhombus. The first question is, what do you mean by rhombus? Rhombus is a geometrical figure. It's a quadrilateral where the all sides of this figure are equal. If all sides of a quadrilateral are equal, and that figure is called as the rhombus. Now we are not going for all detail of the rhombus, we will go for the area because the lesson is area. So area of rhombus formula is, area means area of rhombus is half into product of two diagonals, and we can write in the set half into d1 into d2. क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू d1 into d2. So do one thing first, write this formula, then one by one go for the question. So the first question is, see, is given length of a diagonal lengths of the diagonals of a rhombus are 15. That means d1 equals to 15 centimeter. And second diagonal is given 24. Find the area. That means area is the question mark. So the work of question is over. So here you know the area formula. So I'll write here area of rhombus is equals to half into d1 into d2. That means half into first diagonal is the 15 and second diagonal is 24. So 2 and 24 if you cancel, then remaining here 15 is there and here 12 is there. Now if you multiply these two, then 12 5 60 carry 6, 12 1 is 12 6 18. As it is the area, so it will comes in the square centimeter. So once again revise. Two diagonal length is given 15 and 24. Area is the question mark, and area of the rhombus formula is the half into d1 into d2. Half into d1 is the 15 and d2 is the 24. 2 and 24 if you cancel, it will be 1 and 12. Here 15 and 12 is the remaining. If you multiply, it will be 180. Got it, the first one? Exactly second one also the same sum. So do it first. We will go for the second question, just wait. It's given length of a diagonal of a rhombus are 16.5 and 14.2. The same thing, d1 equals to 16.5 and d2 is equals to, find the area. This is the given data. Now what we will write? We will write the formula, that is area of rhombus is equals to half into d1 into d2. So half into d1 is the 16.5, d2 is the 14. Now if you multiply 16.5 and 7.2, sorry 7.1, multiply here 151611 7576. That means 117.15 square centimeter. After 0.1 digit you have 1 digit, that means 2 digit. Point calculation is like this. So once again repeat. Two diagonal is given, area is the question mark. Substitute the area formula. Just in place of d1 write the first diagonal, second d2, then cut 2 and 14.2, it will be 7.1. If you multiply these two, you will get the answer 117.15. Okay. Now we'll go for the third and fourth, and these two are the little difficult because here the steps are little bigger. So I'll erase all this. Okay,
Now the third question is given, if the perimeter of a rhombus is 100 and length of one diagonal is in 48, what is the area of the quadrilateral? अभी उसका area find out करना है. So first the problem is that this is new. We know the area formula. Area is equal to half into d1. d1 is given, it's okay, not a problem. d2, where is the d2 here? So to find the d2 here, more two step you have to go for. This little difficult. Once you see now, you can get that कि हाँ easy है, but थोड़ा सा difficult लग सकता है. ओके, तो क्वेश्चन का काम हो गया. अभी हम लोग करते हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए ना मुझे एक फिगर की जरूरत पड़ेगा. चलो मैं एक पहले फिगर बना लेता हूँ. नाम भी रख लेते हैं फिगर का. पहले फिगर हमने खुद से बनाया तो उसको हम डिस्क्राइब करना पड़ता है. ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट होता है, अगर क्वेश्चन में गिवन दिया है फिगर तो नॉट ए प्रॉब्लम. अगर नहीं दिया हुआ है तो हमको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा हम किस फिगर बनाए, क्यों बनाए. तो पहले लिखेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रम्बस. O is the, otherwise you can write two diagonal intersect at point O. ये थोड़ा स्टेप याद रखोगे. अभी हम गिवन डेटा को इसमें लिख लेते हैं. गिवन डेटा डायगोनल दिया हुआ है, मैं एक डायगोनल BD ले लेता हूँ. BD इक्वल्स टू 48. जो डायगोनल हमको दिया हुआ है, एक्चुअल फिगर में डायगोनल्स हमको नहीं चाहिए, हमको थोड़ा आधा करना है उसको. समझ जाओगे आगे क्यों करना है. BD अपॉन 2 दैट इज 48 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 24. यहाँ से एक चीज़ हम फाइंड आउट कर दिए, BO 24. हमको पेरीमीटर दिया था 100, वहाँ से मैं AB फाइंड आउट करूँगा. AB इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 25. फिर ये कैसे हुआ देखो, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो एक साइड क्या हो जाएगा ना 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, शुड बी 25. देन नेक्स्ट विल गो, तो ये हमको 24 मिला, ये हमको 25 मिल गया. राइट हियर इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB is equals to 90 degree. So by Pythagoras theorem, AB square equals to AO square plus BO square. समझ रहे हैं. इस ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री क्यों होता है सबसे स्टेटमेंट में बताऊंगा तुम्हें, फिर समझो. AB स्क्वायर मतलब क्या होगा, ये हाइपोटेनस साइड 1 प्लस साइड 2. देन 25 स्क्वायर AO is not given and BO is the 24 square. 25 square is the 625. AO is not given. 24 square is the 576. If you subtract, इसको इस साइड लेके आना है, माइनस हो गया, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 49. अगर AO स्क्वायर 49 है तो AO कितना हो जाएगा 7. अभी हमारा AO अगर 7 हुआ तो OC भी 7 होगा. दैट मीन्स हमको AC यहाँ पे कैलकुलेट करना है. AC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14. अभी हम जाके फाइंड आउट करेंगे एरिया. विल राइट हियर, मैं लिख लूँ एक बार, फिर एक बार समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा. D1 हमारा दिया था 48. अभी जो AC हमने फाइंड आउट किया हमारा D2 हो गया, वो है 14. अभी लिखेंगे एरिया ऑफ rhombus is equals to half into D1 into D2, half into 48 into 14, 2 से कट करो 7, सो बचा 48 एंड 7. 7 8 56 करी 5, 7 4 28 5 33 स्क्वायर सेंटीमीटर. चलो और बस स्टेप्स याद रखते क्या क्या किया और क्यों किया ऐसे, तो समझ में आ जाएगी जल्दी. पहले हमको क्वेश्चन में दिया है पेरीमीटर और वन डायगोनल. तो पहले मैंने बताया कि हमको दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करना होगा. इसके एक फिगर का हेल्प लिए पहला स्टेप हम फिगर को फिर डिस्क्राइब करा है. क्या करा है ना, ABCD हमारा एक रम्बस है.
जिसमें दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट में, पॉइंट के बारे में बता दिया हमने। देन सेकेंड, जो हमको एक डायगोनल दिया था 48, हमने उसको आधा किए। क्यों किए और ये आधा क्यों होता है ना, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो 48 है तो आधा कितना हो जाएगा 24। ये आधा हमने क्यों किए थे, क्योंकि हमको ये ट्रायंगल लेना था। तुम डी बी ओ की जगह डी ओ भी कर सकते हो, तो ये ट्रायंगल ले लेना। फिर मैंने बी ओ ले लिया। बी ओ के बाद हमको फिर क्या, तीनों साइड में से अगर दो साइड मालूम होता है, एक साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, तो इसलिए हम दूसरी साइड ही फाइंड आउट कर दे, कौन सा, ए बी। क्योंकि जो पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, चारों साइड मिला के अगर 100 है तो हर एक साइड कितना कितना हुआ होगा 25। जब हमको ये और ये मालूम पड़ गया तभी हम पाइथागोरस थ्योरम किए। ये स्टेप कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि तुम ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें आता है। तो वहाँ से हमको ए ओ कितना मिल गया 7। और हमको ए ओ से मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, ए सी से, डायगोनल से। क्योंकि हमको डायगोनल मिलेगा तभी हम फॉर्मूला कर सकते हैं। जैसे ये डायगोनल दिया था तो आधा करने के लिए हाफ कर दिए, ये फाइंड आउट करने के लिए। अभी ये दिया हुआ है तो डायगोनल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 समझा 14। जब सेकंड डायगोनल मिल गया देन एरिया फाइंड आउट कर लिया हमने। समझा अभी क्वेश्चन कैसा है। एक दो बार प्रैक्टिस को थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन स्टेप्स याद रखने के लिए इजी। देखो मैं स्टेप्स याद करा देता हूँ। पहले फिगर डिस्क्राइब किए, गिवन का जो डायगोनल उसको आधा किए, पेरीमीटर जो दिया उसको 4 से डिवाइड किए, मिल गया। ये 3 स्टेप तुम्हें याद रखना है, 3 लाइन जैसे बोलते हैं। छोटा छोटा टुकड़े में याद रखने की कोशिश करना, समझने के लिए। डायग्राम को डिस्क्राइब करना है, डायगोनल को हाफ करना है, फिर एक बार पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करना है, फिर एक बार पाइथागोरस थ्योरम लेना है, उसमें ऐसे को डबल कर देना क्योंकि जो साइड मिला वो आधा मिला, हमको पूरा चाहिए। उसके बाद तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एग्जैक्टली सेम है, इसको पॉज करके पहले सॉल्व करो। नाउ आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। और इसे याद रखो, हर टाइम सोचो मत कि इजी क्वेश्चन सब रहेगा, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है। और तुम्हारा काम क्या है ना, उसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना डिफिकल्टी भी इजी रहने लगेगा। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है। इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रम्बस इज 30, दैट मीन्स मीनिंग सेम हो गया। एक डायगोनल दे दिया 30 एंड इट्स एरिया इज गिवन 240। फाइंड द पेरीमीटर। क्या पूछा है फाइंड आउट करने, फाइंड द पेरीमीटर। ओके, अभी क्वेश्चन में ब्लू बंद कर दे रहा हूँ। देखो अभी डायगोनल दिया है, एरिया दिया, तो डायगोनल तो मिल जाएगा, फिर पेरीमीटर फाइंड आउट करने दिया, मतलब पूरा रिवर्स है। देखो हम पेरीमीटर दिया था, डायगोनल करके एरिया कर देते हैं। अब एरिया डायगोनल दिया है, पेरीमीटर करना है, तो पहले चीज़ हम क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ रम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2। एरिया कितना दिया है, हाफ इंटू D1 कितना दिया हमको 13, D2 नहीं मालूम। अभी 2 से कट कर देता हूँ इसको, 15 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देता हूँ, या पहले 3 से कर देता हूँ। देखो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 0, फिर 5 से कट दो 16। दैट मीन्स सेकेंड हो गया डायगोनल 16। बट हमको तो क्वेश्चन में डायगोनल पूछा ही नहीं, हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो फिर वही फिगर का हेल्प लेंगे। अभी वापस वही चीज़ होगा और तुम्हें ऑलरेडी उस पहले क्वेश्चन में याद हो जाएगा, तो फटाफट लिख सकते हो। अभी लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए rhombus, then O is the point of intersection, that means two diagonal intersect at point O। लिख लिए डिस्क्रिप्शन वाला लाइन, वहाँ पे पूरा याद करो डिस्क्रिप्शन। फिर डायगोनल को वहाँ पे आधा करते थे, यहाँ पे दो डायगोनल मालूम है तो दोनों को आधा करेंगे। तो पहले लिख देंगे AO इज इक्वल्स टू, चलो मान लेते हैं दोनों डायगोनल का नेमिंग देता हूँ। पहला वाला डायगोनल को मैं लेता हूँ BD इक्वल्स टू 30,
BD 30 है तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, BO, दैट इज BD अपॉन 2, 30 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 15। जैसे BD ले लिए, ऐसे क्या लेंगे, AC हमको जो मिला था 16 ले लेते हैं। देन AC के जगह क्या फाइंड आउट करेंगे, AO इज इक्वल्स टू 8। AC AO दोनों मिल गया, AO BO दोनों मिल गया। अभी क्या जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। AO मीन्स कितना था, 8, AB मीन्स कितना है, 15, 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर, if you add 289, that is AB square, so root over of AB square is the AB equals to 17। AB अगर 17 हुआ, मतलब एक साइड अगर 17 हुआ तो सारे साइड 17 हो जाएगा। दैट मीन्स पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पेरीमीटर दिया था 4 से डिवाइड करे थे, पेरीमीटर फाइंड आउट करे तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, 28। और एक बार समझाता हूँ फिर समझ जाओगे, इजी लगेगा तुम्हें, कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो कोई के बारे में यहाँ पे पूछते हैं कि स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी आएगा। कभी कभी यहाँ पे पूछते हैं 90 क्यों होता है, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट अगर लिख सकते हो, दैट इज डायगोनल बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली बोलते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। चलो अभी थोड़ा समझते हैं फिर जाके। पहले क्वेश्चन में हमको डायगोनल दिया है, एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम क्वेश्चन में लिखिए, एरिया का फॉर्मूला लिख दिए, एरिया की जगह 240 दिया हुआ है, हाफ इंटू D1 हमको दिया 30, D2 नहीं दिया, 2 से कट कर दिया 15 को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, हमको सेकंड डायगोनल मिल गया। बट क्वेश्चन में हमको सेकंड डायगोनल नहीं पूछा था, क्वेश्चन में हमको क्या पूछा था, पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करने हमको साइड फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि साइड जब मिल जाता है ना तो 4 मल्टीप्लाई करते हैं, और साइड के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं, तो हमको पहले पाइथागोरस थ्योरम करना पड़ेगा। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको क्या है, पूरा नहीं चाहिए, हाफ हाफ चाहिए, तो इसलिए पहले एक फिगर का हेल्प लिया, तो फिगर के बारे में लिखा, दोनों डायगोनल को आधा आधा कर दिए। जब दोनों डायगोनल हाफ हाफ मुझे मिल गया तब भी हमने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम, दोनों डायगोनल का स्क्वायर को प्लस किए, दोनों जो आधा आधा का हाफ हाफ का स्क्वायर कर दिए, मिल गया हमें 17। अगर एक साइड 17 हुआ तो सारे साइड 17 ही होगा, क्योंकि रम्बस का प्रॉपर्टी यही होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसको प्लस करने से बेटर है 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, 4 को अगर कंपेयर करोगे ना, दोनों तुम एग्जैक्टली सेम लगेगा, खाली थोड़ा उल्टा हो गया। पेरीमीटर दिया था, इसमें पेरीमीटर पूछा, वहाँ पे 4 डिवाइड करे थे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बाकी मोस्टली चीज़ तो सेम लगेगा। समझा करना क्या है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, तुम्हारा काम है थोड़ा सा वक्त तक करना पड़ेगा आरती में। चलो ट्राई करिए कंप्लीट करने के लिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे आगे।